Friends, this is the part number 2 of your projectile motion. इस पार्ट में आज आप लर्न कर पाएंगे हाउ वी कैन डिराइव आउट एक्सप्रेशन फॉर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. Important point to be note that this is the case of oblique projection. तो सबसे पहले we have to draw a figure diagram. The message is very clear from this figure diagram that here we projected a projectile making an angle theta with the horizontal direction with initial velocity that is a u, and this is the path followed by the projectile. Suppose at particular moment पे projectile है at point P. तो here x is the horizontal distance and y is the vertical distance. As at point P, जो velocity है that resolve into two component. One is horizontal component that is ux, which is equal to u cos of theta, and the second is uy that is equal to uy sin of theta. In last lecture we have discussed some important points that during horizontal motion जो velocity horizontal component है that is always constant. Horizontal component of velocity always at every moment, at every time, it always remains constant. Because important point to note that because as no acceleration is acting in that direction, whereas जो vertical component है velocity का that is a variable because of gravity, as we discussed in the previous lecture, जो gravity का effect है that is applicable in vertical direction only. तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक को वी आर गोइंग टू कवर इन डिफरेंट पार्ट्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ वी कैन ड्राइव आउट एक्सप्रेशन फॉर वर्टिकल मोशन, देन इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, देन वी विल learn how we can establish the relation between x and y, या how we can derive out expression for trajectory. तो आज का जो लेक्चर है इन 3 मेन पार्ट्स पे हम मेनली फोकस करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ वी कैन ड्राइव आउट इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन. Let at an instant projectile is at point P. Since we know that x is equal to ut plus half at square, this is your equation number 1. This is equation for position time in case of uniform accelerated motion. अब हमने देखना है कि हमारे प्रेजेंट केस में this equation reduced to y is equal to u sin theta t plus 1 by 2 minus gt square, because here s is equal to y, क्योंकि we are going to discuss the case of vertical motion, right? तो यहाँ पे जो vertical displacement है that is y, and the vertical velocity that is uy, और जो uy है in this case that is u sin theta, and a is equal to acceleration due to gravity, जिसको हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं बाय सिंबॉलिक लेटर स्मॉल g, और हियर स्मॉल g दैट इज अ माइनस इन साइन, बिकॉज ग्रेविटी इफेक्ट, जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड की तरफ लग रही है, वेयर एज द मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. एट पॉइंट P पे जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है इन अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है वर्टिकल डाउनवर्ड. दैट्स वाई जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज नेगेटिव. ओके, बाय सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन वी गेट दैट y is equal to u sin theta t minus 1 by 2 gt square,
and this is the equation for vertical motion. जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा, how we can derive out expression for horizontal motion. It means here we have to derive out the equation for motion in case of horizontal motion, right? Again we know that S is equal to ut plus half at square. According to our present condition, here S is equal to x, क्योंकि this is the case of horizontal motion, जो horizontal distance covered by the projectile, that is a x. And in horizontal direction में जो हमारे पास जो velocity component है, that's ux, which is equal to u cos of theta. As I discussed earlier, जो ux है that always remains constant. And I have already discussed in the previous slide that जो acceleration due to gravity है during horizontal motion, that is 0. That is very important point to be noted, क्योंकि acceleration due to is only applicable when there is a vertical motion. अब using these equation 3 reduced to, या equation 3 can be expressed as u cos of theta t, क्योंकि u is u cos of theta and a is equal to 0. In next step, this factor reduced to 0, because when we multiply something 0, result is 0, and this is your equation number 4, and this is the equation for horizontal motion. The next target is that how we can derive out the expression for trajectory. Most of the time question exam में पूछा जाता है, you have to prove that जो path followed by the projectile, this path followed by the projectile, that is a parabolic in nature. Yeah, how we can establish the relation between two variables, that is x and y, right? तो इसके लिए we have to take the help of, we have to make the use of equation number 4 and equation number 2, क्योंकि equation number 4 that express x and equation 2 that express y. अब equation number 4 को यूज करके we can get t is equal to x over u cos of theta. यदि हम इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमारे पास y और x के बीच का रिलेशन स्टेबलिश हो जाता है. वही हमने किया. इक्वेशन नंबर 2 में हमने t की वैल्यू पुट डाउन कर दी u sin थीटा t, राइट. तो y यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज x ओवर u cos थीटा माइनस 1 ओवर 2g t स्क्वायर. t मीन्स x ओवर u cos थीटा का स्क्वायर. अगले नेक्स्ट स्टेप में हमारा टारगेट रहेगा टू ओपन दिस ब्रैकेट, टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. तो वही हमने किया. तो यहाँ पे सेकेंड फैक्टर को, दैट इज 1/2g एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. क्लियर. इन द नेक्स्ट स्टेप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे u फर्स्ट फैक्टर में, दैट इज u और u आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, that is tangent of theta, and this equation reduced to x tangent of theta minus 1 over 2g x square u square cos square theta. What is the message from this equation? Message is very clear that जो y है that is directly proportional to x square. जैसे मैंने आपको कहा था कि we have to establish the relation between y and x. y और x के बीच का जो रिलेशन है, y directly proportional to x square. It means the path followed by the projectile, that is parabolic in nature. इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे, टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ लाइट, to find expression for horizontal range, to find expression for maximum vertical distance,
and finally to find the maximum horizontal range। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और कई बार डिफरेंट पार्ट्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले in this part we are going to discuss how we can derive out expression for time of flight, that is noted by capital T. Time of flight means it is the total time taken by the project since its projection to just before hit the ground. It means when projectile is in air. So that is the most important, that जो time है here not small t, that is a capital T. We are talking about the complete path. Okay, since we know that, again s is equal to ut plus half at square. In our present case जो s है that is a y is equal to 0, क्योंकि आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस इज द पाथ फॉलोड दिस टाइम एंड हिट द ग्राउंड हियर। ओके, द टोटल टाइम दैट इज कैपिटल टी, और इस वक्त जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्टाइल का दैट इज 0। ओके, जो u है दैट इज यू वाई माइनस यू साइन ऑफ थीटा, राइट, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है दैट इज इन दिस पाथ, और जो a है दैट इज मैंने कहा था कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली एप्लीकेबल इन वर्टिकल मोशन, क्योंकि हियर इज द केस ऑफ वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डाउनवर्ड, दैट इज a इज इक्वल टू g, और जो t है दैट इज चेंज टू कैपिटल T। अब दिस इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड टू माइनस यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। हमारा टारगेट है कैपिटल T को लेकर। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, इस फैक्टर को हम इस तरफ ले गए तो यू साइन थीटा टी इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं नेक्स्ट केस में टी से टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो जाएगा, देन दिस इक्वेशन reduced to sin theta u sin theta that is 1/2 GT। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, t को एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ ले जाएंगे, और वही हमने किया, तो t is equal to 2u sin theta over g। दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ लाइट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, टू ड्राइव आउट एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, राइट। जब प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस इज द एसेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीच एट मैक्सिमम हाइट वेयर यू वाई मीन जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिड्यूस टू 0 corresponding to this point, and we have to drive out expression for maximum height here where the vertical component of that is equal to 0. It is the maximum vertical displacement of the projectile from the ground, right? Since we know that, again equation number 3, in this case s is equal to x maximum, and corresponding to this point uy is equal to 0, and जो acceleration है that is vertical downward whereas motion is vertical upward, and a is taken as minus g। यदि total time taken by the projectile capital T है and this is the half the journey corresponding to this point, this is the half the journey of the projectile, तो हाफ जर्नी में जो टाइम है क्या हो जाएगा at that instant कैपिटल T/2। यदि टोटल टाइम T है तो हाफ टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल T/2। अब इक्वेशन 3 मॉडिफाइड एज, ओके, जब we value in this case in here 0 T/2, it means this factor reduced to 0 and equation can be written as minus 1/2 GT square over 4।
इन द नेक्स्ट स्टेप 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/8 GT स्क्वायर, वही हमने किया, राइट। अब अगले स्टेप में वी आर गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ टाइम, क्योंकि जो हमने ऑलरेडी ड्राइव आउट कर ली है दैट इज, और इस वैल्यू को, इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पुट डाउन कर लिया, और दिस इज योर इक्वेशन। और इस इक्वेशन में हम सबसे पहले आप ब्रैकेट को फोकस करेंगे एंड देन सॉल्व 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g स्क्वायर, वही हमने किया। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 से 8 को कैंसिल आउट करके, g से g स्क्वायर कैंसिल आउट करके, दिस इक्वेशन चेंज टू 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g। दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट फोकस है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और एग्जाम में पूछा जाता है कि यू हैव टू ड्राइव आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज एंड देन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अभी तो हम फोकस कर रहे हैं इस आर्टिकल में हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। तो सिंस वी नो दैट S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि अब हियर T इज कैपिटल T, जो मैंने ऑलरेडी इक्वेशन में पुट डाउन कर लिया है, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया आपने यहाँ से तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया दैट इज R। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, और जो हार्ड डिस्टेंस कवर किया दैट इज इन टाइम कैपिटल T। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हियर S इज इक्वल टू कैपिटल R, U इज इक्वल टू UX, दैट इज U cos थीटा A 0, क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, T कैपिटल T, जो मैंने ऑलरेडी आई हैव टेकन दैट। अब दिस इक्वेशन मॉडिफाइड टू है R इज इक्वल टू U cos थीटा T प्लस 1/2 0 T स्क्वायर, एंड दिस फैक्टर रिड्यूस टू 0, एंड अब इक्वेशन एक्सप्रेस्ड एज U cos थीटा T। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कैपिटल T मीन दैट इज द टाइम के लिए इक्वेशन जो है 2u sin थीटा ओवर g, इसको इनकॉर्पोरेट करना है, देन वी गेट द इक्वेशन दिस वन। अब आप देख पा रहे हैं अगले स्टेप में u और u दैट इज u स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा ओवर g। अब स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा फोकस इस पॉइंट पे करने का, इस स्टेप पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं here is a one of the most important relation of trigonometry, that is, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन फील्ड ग्रीन टेक्स्ट में 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल टू sin 2 थीटा। आप इस पॉइंट, इस ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन को परमानेंट अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और ये अपनी कॉपी पे परमानेंट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कई बार फिजिक्स में अप्लाई होता है 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू sin ऑफ 2 थीटा। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके जो 2 sin थीटा cos थीटा है उसको हम क्या करते हैं, आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मींस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए व्हाट शुड बी द प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्शन एंगल है वो कितना होना चाहिए। अभी हमने जो इक्वेशन ड्राइव आउट की फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया है, r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, और मैक्सिमम दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। और आप जानते हैं कि यदि किसी भी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उस इक्वेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब आती है, जितनी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट दो उनकी ये जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज अ sin 2 थीटा, यदि sin 2 थीटा इक्वल टू 1 है देन जो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम। इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, जो sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू
1 फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, क्योंकि इस इक्वेशन में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है दैट साइन टू थीटा, जो कंसेप्ट कहता है जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है दैट शुड बी इक्वल टू 1 फॉर मैक्सिमाइज केस के लिए। एज वी नो दैट साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। अब 1 को हम इक्वल टू साइन 90 डिग्री एक्सप्रेस करेंगे, वही हमने किया। इन नेक्स्ट स्टेप में साइन और साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी विल गेट 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। द मैसेज इज वेरी क्लियर दैट टू कवर ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी 45 डिग्री। कहने का मतलब यदि किसी प्रोजेक्टाइल को हम 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो उस वक्त दैट विल कवर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एज वी नो दैट इस इक्वेशन को मैंने मेन आर्टिकल में एक्सप्रेस किया, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, राइट। अब यहां पे साइन टू थीटा की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो वी विल गेट इक्वेशन आर मैक्सिमम, क्योंकि अब आर चेंज टू आर मैक्सिमम यू स्क्वायर ओवर जी, क्योंकि साइन टू थीटा की वैल्यू दैट इज 1। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट नंबर 2 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर योर टाइम।